Hello kids, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the weightlessness and the Kepler's laws of motion. Right, basically that is what we are going to study today. And after this lecture, we will be completing our gravitation chapter and then we will be doing some revision and then after the questions. Alright, so this is the last lecture, the theory last lecture राइट ऑफ ग्रेविटेशन एंड बेसिकली जो आज का हमारा मेन मुद्दा है वो वेटलेसनेस को डिस्कस करने का है अलॉन्ग विद द केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑलराइट। ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर द गुड टॉपिक्स, इनके बीच में यू कैन से बहुत कन्फ्यूजन होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा होता है दैट व्हाट इज़ दैट वेटलेसनेस और हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है। दैट्स वाई यू शुड पे अटेंशन टू इट। ऑल्सो ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर टोटली इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर दोज आर द स्कूल एग्जामिनेशंस और द ओलंपियाड लेवल्स। तो बेसिकली यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू इट, मेक श्योर दैट you learn from these things in a very deep manner. Alright, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You have to write this code TTP009 for your class on the search box of the Telegram app. Write this TTP009 and then you will be getting our channel for the 9th class. Join that channel and you can access all the DPPs and study material available over there. Alright. Now see, this is the team, as you can see here. This is the team actually which is doing very much hard work for you all so that we can provide you the lectures and make you capable of cracking the examinations you have set your aim for. Right, that is our main goal, to make you able to do so, right? And that's why we are giving you the lecture so that you can prepare for the NTSC, NSE-JS, right? And even you can prepare for your future, right? If you want to go for the IIT, JEE or NEET, right? If you want to go for it, then these are the basic one, right? You should start from here. This is known as the early start. If you start studying from now, because these are the basic thing, right? आप 9-10 में जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे ना वो बहुत बेसिक टॉपिक्स होंगे और इन्हीं टॉपिक का एडवांस वर्जन आप 11-12 में स्टडी करते हैं इन IIT, JEE एंड नीट ऑल्सो, राइट। सो अगर आप अभी से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी सो मच बेटर फॉर यू in your future. Definitely you will be ahead of many students and that can give you a very much you can say a lead to get that marks, right? That is why I should definitely make you capable of doing that, and that's why we have provided these lectures for you all. So make sure you watch these lectures, share them all, right, with everyone you know, with your friends, with your family members, even your relatives. You can definitely do that so that कोई भी अगर ऐसा बच्चा हो जिसे इन लेक्चर्स की नीड हो, he can get that and study from these. All right, that's why it is would be a good cause if you share them all. All right. Now see, in accordance to that, जो कि हम लोगों ने आपके लिए lectures provide किए हैं, in accordance to that we have also created the packages for you also. If you are only interested in the free lectures, you can get that. All right, you can watch these free lectures on the YouTube, right? And if you are little bit more serious and you are capable of buying these packages, then you can do so, because these are the packages, the full and the test series one. So in the full package we have included the study material, the comprehensive study material, which is focused on the particular competitive examination. That is why that is necessary. Right, you will be getting the video classes and the live classes, and next you will be giving the homework submission feature where you will be doing the homework and submitting to us. So it will require a discipline and very hard work for you also to do the homework and submit it to us, right? It would be a little bit of burden on you. Definitely you need to do the homework also, right? And then you will be getting the bi-weekly quizzes. That means you are going to attempt quiz twice a week, and then you will be getting the periodic test papers. So basically these 5 things are the most important thing you need to crack any examination. If you are a good student and a very bright student, definitely you can study only from the video classes. Alright, so that would not be necessary. But if you are not that much of disciplined student and you are not that much of bright student, right? So you can decide for yourself that you can be. Alright, you can become that bright student. You can become that disciplined student, right? If you are interested, you can join these so that you can get a year-long procedure to study the whole
whole course for your subjects, right? So definitely you can join that. And if you are only interested in the test series, then definitely you can join the test series. You can get the test series, and in that you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers along with the video classes. Alright, so that will be so good for you all. If you are literally want to join this, alright, then you can use my code CYLife to get 30% discount. And if you have any query regarding these packages, that how these packages are going to help you, and why you should buy them, and should you buy them or not, then you can definitely call us on the number 919549041111. So if you call us on that number, your query will be resolved and definitely all your questions will be answered. That is the most important thing I wanted to convey to you. Alright, now let's do the promise. So that is it. You are going to watch the whole lecture. You are going to make proper notes out of it, and then you will be revising on a daily basis. I should definitely tell you that I emphasize more and more on revision, because that is so important. Alright, important is like really important. If you are a little bit of serious towards your goals, definitely you should be revising, right? And you should do that 20 minutes a day at least 20 minutes a day, and that would be so good. If you are not a disciplined child, and if you are not if you haven't done revision till now, then you can start it now. All right, you can do that, and you can do that revision 20 minutes a day. It would be so good for you all, and you are capable of revising all the concepts, all the chapters you have already, you know, आपने जो छोड़ दिए हैं सारे चैप्टर्स, उनका आप रिवाइज कर सकते हो in 20 minutes, and that would be so good along with the present chapters. ठीक है, तो अभी हम जैसे ग्रेविटेशन करने वाले हैं, so next class would be the revision class. That would be so good. आप पूरे चैप्टर का रिविजन कर सकते हो. एक बार आप मेरे साथ कर सकते हो, एक बार आप खुद से अपने घर पे आराम से कर सकते हो, तो that would be like twice आप रिविजन कर चुके हैं, right? And then practice the questions. This would be so much sufficient for you all, right? तो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बट आपको थोड़ा मेहनत करना है to get that target, all right? And that is why I'm focusing more and more on revision and studying. All right, now let's get started. हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज द वेटलेसनेस एंड द कैप्लर्स लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन. दैट मीन्स जो प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो किस तरीके के लॉज को फॉलो करते हैं और किन लॉज को फॉलो करते हैं. एंड रिमेंबर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज फॉलोइंग सम लॉज, राइट? मे बी वी डोंट नो द लॉज ऑफ दैट, बट जितने हमें पता है वो यही पता है कि भाई वहाँ पर लॉज को फॉलो किया जाता है. हमने अभी अभी ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा है, राइट? तो दैट मीन जो सन है वो भी लॉ को फॉलो कर रहा है, अर्थ वो भी लॉज को फॉलो कर रही हैं, जो बाकी प्लैनेट्स है वो भी लॉज को फॉलो कर रहे हैं. एंड वी विल बी स्टडिंग दोज लॉज कि भाई वो कौन से लॉज को फॉलो कर रहे हैं. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेटलेसनेस. व्हाट इज दैट? ये जो कंसेप्ट है द वेटलेसनेस, डज इट इवन एग्जिस्ट, और व्हाट डज इट फील लाइक हैविंग वेटलेसनेस? वी विल बी टेलिंग यू दैट. Alright, so basically that is what we are going to study today. The inside topics, the subtopics we can say are weight of object on the moon. First of all, we are going to calculate that, the formula in relation with the earth, right? That means the weight of the body on moon and its comparison with the weight of the body on earth. Alright, we are going to compare that. Variation in the weight of a body, when and how we are going to get the variation on the weight of the body, that is what we are going to see. Then we will be talking about weightlessness. Then we will be talking about the Kepler's laws of planetary motion. And then finally we are going to see the motion under gravity. That is a topic which you have already understood in the laws when I told you the laws in the first chapter. Alright, ये little bit similar है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने जो revision किया हो तो उन्हें वो याद आ जाए. ठीक है, तो now let's get started. So we are going to write the weight of the object on moon, right? moon पे weight क्या है object का? Let's see that. हमें ऑलरेडी वेट का फॉर्मूला पता है, राइट? मतलब अब तक तो हम वेट का फॉर्मूला समझ चुके हैं, W इक्वल्स टू mg, दैट इज द वेट, उसका फॉर्मूला, राइट? सो लेट्स राइट दैट फॉर्मूला फर्स्ट. W इक्वल्स टू mg. ऑलराइट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून, अगर मुझे मून पे फॉलो मतलब फॉर्मूला लिखना है, सो आई कैन राइट हियर वेट ऑफ अ बॉडी
on moon, what it would be? Wm. I'm writing small m for the moon to denote it like it is the weight on the moon, right? उसके बाद हम लोग देखेंगे मास ऑफ द बॉडी, दैट इज अ कांस्टेंट. ये जो मास है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स. ऑलराइट, सो दिस इज एज इट इज. एंड देन अ जी, small g, acceleration due to gravity. Again I have written gm, that is the acceleration due to gravity on moon. Alright, so I have told you the notations I have used till now. This is the equation 1. Alright, now let's write the weight of the body on earth. Alright, so we can write the weight of the body and bodies are the same. Alright, bodies हमने change नहीं किया है, body बिल्कुल same है on earth. ऑलराइट, अर्थ के लिए हम नोटेशन ले रहे हैं ई, ठीक है, WE. आई एम राइटिंग दैट WE, ठीक है. तो यहाँ पे मास वुड बी द सेम, मास तो चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट. ऑलराइट, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम थिंग, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है. मैं हिंट दे देती हूँ तुम्हें पहले ही. एंड अगेन GE इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन टिल नाउ, ठीक है. अब हमें ये बात तो पता है कि भाई ये जो GE है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, तो भाई GE का वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, मून का आई टोल्ड यू व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएशन, जब हमने फर्स्ट में बिल्कुल जब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस किया था, तब हमने देखा था कि जो मून का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ऑलमोस्ट 1.7 समथिंग, राइट. तो हम लोग ये बात जानते थे कि GM जो है वो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग वैल्यू रखता है. ऑलराइट, लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन दीज इक्वेशन एंड देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है. हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है. लेट्स डू दैट. जब हम डिवाइड करेंगे, लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट कलर. जब हम करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, WM डिवाइडेड बाय WE इज गोइंग टू बी MGM डिवाइडेड बाय MGE. ऑलराइट, तो M से M कैंसिल आउट हो गया बिकॉज दैट इज द कॉन्स्टेंट थिंग, राइट. कैंसिल आउट हो गया. GM और GE का वैल्यू मुझे पता है पहले से. ऑलराइट, लेट्स डू दैट देन. फिर हम लोग यहाँ पर जो है वैल्यू लिख देते हैं. मून का जो वैल्यू है दैट इज 1.7 और GE का वैल्यू है 9.8. तो एज यू कैन सी हियर 1.7 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है. तो मैं आपको पहले ही बता दूँ दैट इट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, राइट. तो दैट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाइड 1.7 by 6, ठीक है, if I multiply 1.7 by 6, I will be getting the 9.8. All right, and that is why I am going to write here what? WM divided by WE is equals to 1 by 6. So I can get the formula here. Formula is WM is equals to 1 by 6 of WE. That is the relation between द बॉडी जिसका वेट हमने मून पे मेजर किया है एंड द सेम बॉडी जिसका वेट हमने अर्थ पे मेजर किया है, उन दोनों में एक्चुअली रिलेशन क्या होगा. सो लेट्स सी हियर कि यहाँ पर अगर आप अर्थ पे जितना वेट आ रहा है बॉडी का, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जितना वेट आ रहा है बॉडी का, अगर आप उसको 6 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तब आपको जो है मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मून का वेट मिलने वाला है. मतलब मून पे उस बॉडी का कितना वेट होगा, ठीक है. दैट इज द रिलेशन. मून पे हमें जो वेट मिलता है दिस इज 1 by 6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑन अर्थ, राइट. तो इसका मतलब जो बॉडी का वेट है वो अर्थ पे ज़्यादा है और मून पे कम है, राइट. दैट इज ऑल्सो थिंग यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे जो G का रिलेशन होता है, G ऑफ मून एंड G ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच में भी सेम कुछ ऐसा रिलेशन होता है, 1 by 6 टाइम्स होता है. ऑलराइट, अब आप इसे फटाफट से नोट कर लो एंड देन वी विल बी वॉचिंग अ डिफरेंट थिंग. कुछ एक छोटा सा बात हम लोग देखने वाले हैं.
Alright, now let's move on to a new thing that I want to tell you. ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, हमने NLM में इसको देखा था, that is the 1 kg weight. Alright, तो देखो हम लोग यहाँ एक बात जानते हैं और वो ये बात जानते हैं कि भाई वेट जो होता है वो mg होता है. Alright, यहाँ पर अगर मैं फिक्स कर दूँ कि जो बॉडी का मास है that is 1 kg, I fix that, ठीक है. इफ़ ऐसा पॉसिबल हो गया अगर मैंने जानबूझ के 1 kg वेट मतलब 1 kg मास का बॉडी ले लिया है, ठीक है, इन दैट केस आई पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, आई गेट 1 kg into g. g इज द स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑलराइट, अगर मैं यहाँ से कुछ देखना चाहूँ तो क्या मुझे ये 9.8 न्यूटन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो kg एंड एक्सेलरेशन यानी कि मास का यूनिट एंड एक्सेलरेशन का यूनिट इज गोइंग टू गिव मी द न्यूटन, फोर्स का यूनिट, ठीक है. और यहाँ पर मुझे पता g का वैल्यू कितना है 9.8, राइट. तो आई कैन गेट दैट कि भाई w जो है वो 9.8 न्यूटन है, राइट. तो इसका मतलब 1 kg की बॉडी पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, वो उसका वेट होगा, right? And that is what I am going to tell you, a new unit that is known as the gravitational unit of force. ठीक है, ये होता है kg weight and this kg weight is actually 9.8 Newton. तो it is also showing you the relation between Newton and the kg weight. Also it is telling you कि भाई 1 kg की बॉडी का जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन होगा. Alright, that is the important thing you need to understand. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 kg वेट, दैट मीन्स 1 kg की बॉडी पर कितना वेट होगा, दैट वुड बी 9.8 न्यूटन. इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन देन यू कैन गेट यूज दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, नोट दिस डाउन. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसका रिलेशन देखा है. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द वेरिएशन इन द वेट ऑफ बॉडी. लेट्स सी व्हाट आर दैट. ठीक है, जो वेरिएशन हमको देखने मिलेगा. तो देखो हमें फिर से एक बार वेट का फॉर्मूला पता है, राइट. ये जो वेट का फॉर्मूला है इट इज एक्चुअली mg, राइट. तो अगर मैं इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट द वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर, आप खुद से सोचो, क्योंकि ये वेट है, ठीक है. अब ये वेट जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अगर वो चीज़ें बदलेंगी तभी ये वेट बदलेगा, राइट. दैट मीन्स वेट का वैल्यू कब कब चेंज होगा, जब या तो मास का वैल्यू चेंज हो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो, राइट. और ये बात हमको पहले से पता है कि भाई जो मास है दैट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो बेसिकली ये जो मास है ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है. ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाता है कि दिस मास इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेट डिपेंड करता है, व्हाट आर दोज फैक्टर्स. नंबर 1 फैक्टर इज द मास, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है. एंड वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट हमें ये बात भी पता है कि भाई जो मास है वो तो बदलता नहीं, ठीक है. तो ये एक अच्छा जो है कंसेप्ट है, बिकॉज बदलने वाली चीज़ें हमें थोड़ी कम पसंद आती है, ठीक है. हो सकता है किसी को पसंद भी हो, इट्स नो बिग डील. ऑलराइट, सो हम लोग बोल देते हैं दैट इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स.
ठीक है, ये यूनिवर्स में कांस्टेंट है, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू चेंज बिकॉज वी हैव सीन द वेरिएशंस। हम लोगों ने कई जगह पे इसका जो वैल्यू है वो देखी है, राइट। सो हम उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा, इसी की वजह से W को भी बदलना पड़ेगा, यानी वेट को भी चेंज होना पड़ेगा। सो द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल इन द चेंज ऑफ द वेट या फिर वेरिएशन इन द वेट इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वेट चेंज हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। ऑलराइट, तो हमने देखा था G इज मोर ऑन पोल्स एंड लेस ऑन इक्वेटर। अब क्योंकि G ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो वेट है बॉडी का वो पोल्स पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अस टू दैट जो हमारा वेट होगा इज मोर ऑन पोल्स एंड लेस ऑन इक्वेटर, ठीक है। इसके अलावा जब हमने देखा था वो क्या वेरिएशन देखा था, जैसे ही अर्थ की सरफेस से बॉडी ऊपर जाती है, राइट, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, G का वैल्यू चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो G डिक्रीजेस गोइंग अप द सरफेस, गोइंग अप from Earth's surface। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर तुम माउंटेन एवरेस्ट पे चले जाते हो तब तुम्हारा वेट वुड बी लेस, एंड जब आप नीचे आ जाते हो, सरफेस पर आ जाते हो, सी लेवल पे आ जाते हो, देन योर वेट वुड बी मोर, राइट। तो इसका मतलब जब जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हो, ठीक है, या फिर आप एरोप्लेन में जाते हो, तो जब जब आप ऊपर जाओगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे, योर वेट इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड जब जब आप नीचे आओगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, योर वेट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट, इट वुड द मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो इसके साथ साथ हम बोलते हैं कि W भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इन गोइंग अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। थर्ड जो फैक्टर हमने देखा था, इफ वी गो डीप, तभी भी क्या होगा, G डिक्रीज होगा, है ना। तो G डिक्रीजेस गोइंग डीप इनसाइड अर्थ। तो आप ये देख सकते हो, गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ, दैट मीन्स कि भाई ये जो बॉडी है, अगर कोई वो अंदर चली जाती है, लेट्स से वो किसी माइन में चली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो वेट है दैट वाज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ये वेट है वो भी डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा, जब आप धरती के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट G है, दैट्स वाई देयर इज डिफरेंट डिफरेंट वेट। तो आपका जो वेट है अर्थ पे कुछ और हो सकता है वीनस पे बहुत ही कम हो जाए आपका वेट, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे, लेट्स से यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, दीज आर ऑल द प्लैनेट्स हैविंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है दैट इज डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट डिफरेंट वेट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं G इज वेरिएबल फॉर प्लैनेट्स, नॉट वेरिएबल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। is different for different planets। ऑलराइट, और इसी की वजह से वेट भी डिफरेंट होगा, ठीक है, हर एक प्लैनेट पे आपका वेट वुड बी डिफरेंट। ऑलराइट, तो अब आते हैं अपने फिफ्थ फैक्टर पे।
तो देखो फिफ्थ फैक्टर पे हम क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ फैक्टर और क्या बचेगा, अर्थ का सेंटर, डेफिनेट सी बात है, अर्थ के सेंटर पे, व्हेन यू गो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ पर वी नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, दैट मीन्स आपका वेट वहाँ पे जाके जीरो होने वाला है, ऑलराइट। तो अगर आप अर्थ की सेंटर पे चले जाते हैं देन यू विल बी फ्लोटिंग अराउंड बिकॉज वहाँ पर तो वेट जीरो होगा, राइट। सो g इज इक्वल्स टू जीरो ऑन अर्थ सेंटर, which is implying W is also going to be zero. So as you can see here, आपके वेट को चेंज करने पर, चेंज करने के लिए एक्चुअली जो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलराइट। ये अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल है अलग अलग जगहों पे, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट वेट्स एवरीवेयर, right, and that is the only, you can say, culprit here which is going to change your weight, right? So note this down and then we will be moving forward. Alright, now let's talk about the new thing we want to discuss, right, and that is the weightlessness. Alright, that is what we are going to discuss. Alright, the weightlessness. So देखो, weightlessness मतलब वेट का कम हो जाना, राइट। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन या फिर कोई ऐसा वेट जहाँ पर नहीं, ऐसा सिचुएशन या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आपका वेट ज़ीरो हो जाए। अगर हम सिर्फ प्लेस की बात करते हैं तो वो तो बहुत लिमिटेड है, बट इवन दैट इज़ टेकन एज अ स्टेट, ऑलराइट, कि भाई एक ऐसा स्टेट जहाँ पर हमारा वेट अचानक से ज़ीरो हो जाए, ऑलराइट, एंड दैट स्टेट इज़ गोइंग टू बी द वेटलेसनेस, ऑलराइट। तो बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कभी भी क्या होता है कि लेट्स से अ पर्सन, वो क्या कर रहा है, अपना वेट नाप रहा है, ठीक है। एक पर्सन क्या कर रहा है, अपना बॉडी का वेट जो है मेजर करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ द वेइंग मशीन, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया है। सो देखो ये है एक पर्सन, ऑलराइट, एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली वेइंग हिमसेल्फ। तो ये अपना वेट नापने की कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब हम वेट नापने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से हमारी वेट की रीडिंग आपको पता चलती है, कैसे, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इस वेइंग मशीन के अंदर होती है क्या, स्प्रिंग, ठीक है, इसके अंदर होती है स्प्रिंग। जैसे ही आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, वहाँ पर क्या होता है, आप उस स्प्रिंग को एक्चुअली दबा रहे होते हो, ऑलराइट, अपने वेट से आप उस स्प्रिंग को दबा रहे होते हो। एंड एज एन रिएक्शन, बिकॉज यू आर डूइंग एन एक्शन, देयर वुड बी एन रिएक्शन दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट, राइट। तो वहाँ पर जो एक्चुअली में रिएक्शन वहाँ पर स्प्रिंग का होगा, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली मेकिंग दैट स्केल और द पॉइंटर मूविंग, ठीक है। उसी रिएक्शन की वजह से पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है, एंड दैट शोज यू योर वेट, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक मेन बात आती है, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, देखो अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो स्प्रिंग है
इज गोइंग टू कंप्रेस, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ चला जाएगी भाई, कंप्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आदमी खड़ा हो गया है ना, तो उसके ऊपर जैसे ही वो खड़ा होगा उसके वेट की वजह से, बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट मैन, राइट, तो क्या हो रहा है कि वो स्प्रिंग नीचे की तरफ दब रही है एज एन रिएक्शन, ठीक है। एज एन रिएक्शन वी आर गेटिंग रीडिंग, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, रीडिंग मिल रही है, ठीक है। एंड दैट रीडिंग इज एक्चुअली आवर वेट, बट दैट इज व्हाट, दैट इज रिएक्शन, ऑलराइट, दैट इज नॉट एक्चुअली द एक्शन। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें तब तक पता चलेगा तुम्हारा वेट, तब तुम्हें पता चलेगा जब वहाँ पे रिएक्शन होगा, ऑलराइट। लेट्स इमेजिन दैट सिचुएशन जहाँ पर यह रिएक्शन ही नहीं हो, ठीक है, रिएक्शन ही नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको आपका वेट कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। एंड दैट इज एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ द वेटलेसनेस, बिकॉज उस वक्त आपको वो रिएक्शन नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू गेट योर वेट, ऑलराइट। जैसे एग्जाम्पल, ये पर्सन खड़ा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, ऑलराइट, लेट्स से ही इज लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से फॉलिंग, ठीक है, विद वेट वेइंग मशीन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लेट्स से यही सेम पर्सन क्या कर रहा है, is standing on this weighing machine, but both the things, this man and the weighing machine is falling down, ठीक है। Let's imagine that situation, जब वो falling down हो रहा at that moment, when the body is falling down, when the man is falling down, तो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर देयर वुड बी नो एक्शन, राइट, बिकॉज मैन फॉल कर रहा है, तो जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है वो भी, स्प्रिंग बैलेंस नहीं, दैट इज द वेइंग मशीन, राइट, वो भी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, मूव कर रहा है, सो देयर वुड नॉट बी एनी एक्शन, राइट, वो एक्शन नहीं होगा जिसका रिएक्शन आपको एज अ वेट मिलने वाला था, देयर वुड बी नो रिएक्शन, राइट। तो रीडिंग जो होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। स्टिल हम लोग बोलेंगे कि पर्सन जो है इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, वेइंग मशीन भी गिर रही है, पर्सन भी गिर रहा है, एंड एट दैट मोमेंट उस वक्त क्या हो रहा है, द बॉडी इज नॉट गोइंग टू गेट एनी वेट बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन देयर, ऑलराइट। सो इन केस ऑफ फॉलिंग and specifically free falling, no other force is acting on the body and the weighing machine, just the force of gravity, all right. So we can say on free falling there would be no reaction, so body will feel like losing its weight, तो एक्चुअली में यहाँ पर जब वो इंसान विद द वेइंग मशीन फॉल हो रहा है, देयर विल बी नो रिएक्शन, और उस इंसान को उसका जो वेट है वो नजर ही नहीं आएगा बिकॉज वेइंग मशीन तो 0 रीडिंग दिखाएगी। And that is how you can get the weightlessness concept, because at that moment when a body free falls, उस टाइम पर there is no reaction and that's why that time उसका पूरा weight is lost, alright, that's why that is weightlessness, ठीक है। तो at that moment when the body is free falling, उस वक्त actually में there is no weight, so the weight of the person is 0, so there is the weightlessness situation, all right. That is what I'm going to tell you. So the definition, if we want to know the definition of the weightlessness, this is weightlessness may be defined as the state in which a body loses its weight due to free fall. फ्री फॉल की वजह से जो हमें स्टेट मिल रहा है कि वो अपना पूरा वेट खो चुका है, that state is known as the weightlessness. All right, that is, you can say this situation is definitely occurs in the free fall only, ठीक है, क्योंकि वो free fall experience कर रहा है person. All right, note this down and then we will be talking about some other concepts. ऑलराइट, तो देखो ये हमें पता चला दिस इज द वेटलेसनेस, मतलब अगर कोई बॉडी गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है,
ठीक है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स दैट बॉडी इज एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस, ठीक है, उस वक्त उसका वेट वुड बी जीरो। ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्प्रिंग बैलेंस लिया है। स्प्रिंग बैलेंस में हमने कुछ स्टोन्स को लटका दिया है, हैंग कर दिया है, एंड हमने इस स्प्रिंग बैलेंस को हाथ में पकड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रीडिंग दिखाई जाएगी दैट वुड बी द रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ दी स्टोन। ये तो पता है हमें भाई स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली हमें वेट बताता है। तो फिर इन स्टोन्स का जो वेट होगा दैट वुड बी शोन बाय दिस स्प्रिंग बैलेंस। ऑलराइट, यहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज जहाँ पर आप इसको पकड़े पकड़े छोड़ देंगे, ठीक है, ऑब्जर्व दैट, एंड आपने जिसको पकड़ा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ा हुआ, आप उसको छोड़ दो। अभी भी स्टोन अटैच है स्प्रिंग बैलेंस के, ऑलराइट, अभी भी स्टोन हैंग है स्प्रिंग बैलेंस पर, राइट, लेकिन हमने जो है वो छोड़ दिया। सो द स्प्रिंग बैलेंस अलॉन्ग विद द स्टोन इज फॉलोइंग टूवर्ड्स द अर्थ, ऑब्वियसली बात, ठीक है। अब क्योंकि वो गिर रहा है, द बॉडी इज इन फ्री फॉलिंग, द स्टोन एंड द स्प्रिंग बैलेंस इज इन फ्री फॉलिंग, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां फ्री फॉल हो रहा है, दैट मीन्स उस वक्त रीडिंग जो होगी स्प्रिंग बैलेंस की दैट विल बी जीरो, and this is showing us that yes, the weightlessness concept is true. All right, so you can get when the balance is released from hand finger, the balance falls freely with the hanging stone piece. दोनों साथ साथ गिर रहे हैं, both are attached, right? The balance shows zero reading. This proves that the freely falling stone is weightless. All right, that is the main concept here. All right, now let's move on to the next thing. ये demonstration हम लोगों ने ऐसे ही देखा है to prove it. Now let's talk about the weightlessness of an astronaut. अब देखो यहाँ पर हमें ये बात पता है कि जो ये सैटेलाइट होती है, राइट, ये जो सैटेलाइट होती है ये एक्चुअली अर्थ की तरफ जाना चाहती है। ऑलराइट, अर्थ की तरफ मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ये मूव करना चाहती है, बट बिकॉज इसका मोशन जो है वो पैरेलल है टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इट गोज in that direction and it always rotate like this. At this moment when it is revolving around the earth, actually it is in the condition of a free falling, because the only force acting on this body is just the force of gravity. So in this situation, when a satellite moves around the earth, revolves around the earth, it is actually in the attraction of the force of gravity, right? And that's why this is at the free falling, right? अब क्योंकि ये free falling में है, every single time it is in the free falling, right? क्योंकि पूरा टाइम, जितना टाइम ये रिवॉल्व कर रही है तब वो फ्री फॉल कर रही है, राइट? फ्री फॉल कर रही है तो इसका मतलब वेटलेसनेस होना चाहिए। और आपको पता है इसी वजह से मूवीज़ के अंदर जो आपको दिखाया जाता है दैट एवरीवन इज फ्लोटिंग अराउंड इन द स्पेसशिप, वो सिर्फ इसीलिए दिखाया जाता है बिकॉज येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज दिस बॉडी इज एक्चुअली फ्री फॉलिंग, दिस सैटेलाइट इज एक्चुअली फ्री फॉलिंग, तो जो भी इसके अंदर होगा उसको वेटलेसनेस फील होगा, राइट? एंड क्योंकि वेटलेसनेस फ्री फील होगा तो वो फ्लोट अराउंड करेगा, डेफिनेट सी बात है, राइट? इसी वजह से तुमको मूवी में भी ऐसा बताया जाता है, तो तुम मूवी से भी सीख सकते थे व्हाट इज दैट वेटलेसनेस। Alright, so see here, a satellite is a freely falling body orbiting around the earth. It tries to reach the earth, but its path being parallel to the earth's surface, it does not reach the earth. Hence the satellite and all the bodies inside become weightlessness. ठीक है, जितनी भी बॉडी, खुद भी सैटेलाइट एंड उसके अंदर प्रेजेंट जितनी भी बॉडीज होंगी, जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे या जो भी कुछ होगा, वो वेटलेसनेस को फील करेगा एंड दे विल फ्लोट अराउंड। ऑलराइट, it is due to the situation of weightlessness of astronauts that they are shown in the floating in the movies, right? तो वो पूरा टाइम फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेटलेसनेस। ऑलराइट, एक और जो है हम देख लेते हैं, दैट इज वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। Let's see that. The body feels its weight due to the reaction force and is acted upon other bodies kept in its contact, right? तो एक्शन का जो हमें एज अ रिएक्शन मिल रहा है उसकी वजह से आपको एक तरीके से आपका वेट पता चलता है, राइट? तो देयर हैज़ टू बी द कॉन्टेक्ट जिसकी वजह से सरफेस से एक दूसरे पे एज अ रिएक्शन फोर्स लगा सकती हैं, राइट? एंड देन यू कैन गेट द वेटलेसनेस। बट यहाँ पर जब सैटेलाइट चारों तरफ रिवॉल्व करे ड्यू टू इट्स मोशन एंड ड्यू टू द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, इट इज एक्चुअली फ्री फॉलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्री फॉलिंग द बॉडी is experiencing the weightlessness, and all the bodies inside that satellite are also feeling the weightlessness, so they will be floating around. All right, that is the most you can say important thing, because यहाँ पर
जो भी बॉडी इसके अंदर होगी वो हमेशा फ्लोट करते रहेगी, वो एक्सपीरियंस करेगी वेटलेसनेस को उस वक्त, ऑलराइट। उसका जो वेट होगा दैट मोमेंट वुड बी जीरो बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन, ऑल्सो देयर इज नो एक्शन, राइट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हो सकता है एक्शन कैन बी टेकन एज द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अर्थ, बट देयर इज नो रिएक्शन ड्यू टू विच इट इज नॉट गेटिंग एनी वेट, राइट। इट इज एक्चुअली गेटिंग जस्ट द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केपलर लॉज। हम अब केपलर के लॉज पढ़ते हैं। केपलर के लॉज से, जिस लॉज को प्लैनेट्स फॉलो करते हैं, मतलब वो कितने महान लॉज होंगे, राइट। सो लुक आउट कि ये जो केपलर्स के लॉज थे वो 3 हैं, ठीक है। वो हमने देखे हैं अबाउट दी ऑर्बिट्स कि भाई किस मोशन में करते हैं वो, ठीक है, कितना एरिया स्वाइप आउट करते हैं, उनका टाइम पीरियड एंड द रिलेशन बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, ये सब बातें आपको केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन से पता चलती है, ऑलराइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में प्लैनेट का जो ऑर्बिट है जो कि सन के अराउंड है, दैट इज नॉट सर्कुलर, दैट इज एक्चुअली इलिप्टिकल, राइट। सच अ पाथ, इस तरीके का कुछ पाथ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। दैट इज द पाथ ऑन विच एनी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन, ऑलराइट। और यहाँ पर ये जो इलिप्स शेप है, ये जो ऑर्बिट का शेप है, ये जो इलिप्स होता है दैट इज अ 2D फिगर, और हमें ये बात पता है कि इस 2D फिगर के 2 फोकस होते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 फोकस होते हैं वो यहाँ होते हैं एंड दिस S डैश, द पोजीशन S एंड द पोजीशन S डैश, यहाँ पर एक्चुअली दोनों फोकस होते हैं, ठीक है, 1 and 2। सन वन ऑफ द फोकस पे सिचुएटेड है, ये बात अब मैं आपको बता रही हूँ, ऑलराइट। दैट मीन्स अर्थ इज रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड वन फोकस जो है वो सन ने लिया हुआ है, दैट मीन्स द सन इज एट द फोकस ऑफ दैट इलिप्टिकल पाथ, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स और जो सन है वो एक फोकस पे सिचुएटेड है, देयर आर 2 एंड द सन इज एट 1, ठीक है। फोकस 2 होते हैं बट सन एक पे है और वो वहीं पे सिचुएटेड है एंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब जब अर्थ दूर रहेगी, लेट्स से यहाँ पर अगर अर्थ है, इस ए पोजीशन पे अगर अर्थ है, तो उसका जो मोशन होगा अराउंड द सन वुड बी स्लोवर, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस पोजीशन। पी पोजीशन पे जैसे ही वो आती है ना तो वो फास्टर मूव करती है, ऑलराइट। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑलराइट। नोट दिस डाउन, ये लॉ है, इसे नोट करो फटाफट। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड लॉ जो कि केपलर के सेकेंड लॉ पे आता है, दैट इज द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। मतलब कि 2 प्लैनेट्स या फिर ज़्यादा प्लैनेट जो भी हैं वो सेम टाइम के अंदर सेम एरिया स्वाइप आउट करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट, ठीक है। जैसे लेट्स से वन प्लैनेट है, वो अलग अलग एरियाज में है बिकॉज दिस इज एन इलिप्टिकल पाथ, राइट। एक पॉइंट ऐसा आता है जब बहुत दूर होता है प्लैनेट और एक पॉइंट ऐसा आता है जब बहुत पास होता है प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है, a line that connects a planet to the sun sweeps out equal areas in equal time, that is the aerial velocity of the planet is always constant. That means A से B जाने में जितना टाइम लगा, ठीक है, A से B जाने में, तो you can see the line जो सन को इस प्लैनेट से जोड़ता है, प्लैनेट अभी A पोजीशन पे है, ऑलराइट। तो सन को इस प्लैनेट से जोड़ने वाली जो लाइन है, दैट लाइन इज एक्चुअली कवरिंग आउट अ स्पेस, ठीक है। एरिया को ऐसे कवर अप करिए, ऐसे स्वाइप आउट करिए। अब जब ये ए प्लैनेट बी तक पहुंचेगा तो वो कुछ एरिया कवर अप करेगा, दैट मच, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको कवर अप करेगा, राइट। एंड ये हमने एक सिचुएशन रखी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पहुंच जाता है सी पे प्लैनेट, ठीक है।
सी पे पहुंच जाता है। तो अभी भी ये लाइन सन को और सी को, इस प्लैनेट को जोड़ेगी, डेफिनेट सी बात है। ऑलराइट, एंड अब ये क्या कर रहा है, डी तक पहुंच रहा है। तो ये जो डी पोजीशन है जो कि ऑलरेडी सन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है सी एस डी, दिस सेक्टर, एंड एस ए बी, दिस वुड बी द कांस्टेंट। दैट मीन्स द एरियल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट। ऑलराइट, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। हमेशा क्या होगा, एरिया वुड बी इक्वल। एज यू कैन सी ये वाला पार्ट लंबा नहीं है, राइट, ये शॉर्टर पार्ट है, ये वाला पार्ट लंबा है, बट दीज एरियाज आर टोटली इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर स्वाइप्ड आउट इन इक्वल टाइम। ऑलराइट, तो जितना टाइम प्लैनेट को ए से बी पोजीशन पे जाने में लगा, उतना ही टाइम प्लैनेट को सी से डी पोजीशन में जाने में लगेगा। ऑलराइट, तो मैंने आपको ये बात पहले बताई थी ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो सन है, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट दूर रहता है तो यहाँ पे इसका स्पीड थोड़ा स्लो रहता है। तो देखो जितना उसने टाइम लगाया वो उसने इतना ही टाइम कवर अप किया, इट वॉज स्लोवर, राइट, और इट वॉज फास्टर हेयर, तो वो इतना कवर अप कर लेगा। तो यू कैन सी द एरिया स्वाइप्ड आउट दैट प्लैनेट इज एक्चुअली इक्वल। तो दैट मीन्स हर एक प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी इज द सेम, दैट इज अ कांस्टेंट एज यू कैन से। ऑलराइट, इसे फटाफट नोट करो, देन वी विल मूविंग अप टू द थर्ड लॉ। चलो अभी हम थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ ये बोलता है कि जो एक प्लैनेट है उसका जो टाइम पीरियड है, व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज एक्चुअली कि पूरा 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है एक प्लैनेट को, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट ऑर्बिट का भी बोल सकते हैं। सो वहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं कि जैसे हमारी अर्थ का है तो 1 ईयर दैट इज 365 डेज आर द टाइम पीरियड ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, मतलब कि अर्थ जितने टाइम में एक बार जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, उसका स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, तो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। आर इज एक्चुअली द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज इफ यू टेक दिस एज द सेंटर, ऑलराइट, देन दिस सेंटर अप टू द ए पोजीशन, this one is actually the semi major axis and you can say the mean radius of the path। ठीक है, तो मीन रेडियस ऑफ द पाथ मान सकते हो, एंड आप बोल सकते हो कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द सेम सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज द थर्ड लॉ। क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज द थर्ड वन कि भाई जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस एंड इसका क्यूब। Alright, that is the relation, that is the third law, which is the planet following out every single time, every single moment. Alright, that is the main thing. तो इसको भी आप नोट कर लो, and then we will be looking forward to the motion under gravity. Alright. चलो अभी हम फटाफट से देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑलराइट, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉज हैं ये न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से ही आए हुए हैं। ठीक है, न्यूटन शोड दैट दीज एम्पेरिकल लॉज फॉलोड फ्रॉम हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। These laws are found to hold equally well for satellites either natural or artificial orbiting around a planet। तो इसका मतलब जैसे मून है या फिर हमने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अपने प्लैनेट के चारों तरफ दौड़ाई हुई हैं, ये सभी जो है वो कैपलर्स के लॉज को फॉलो करती हैं। सो दीज लॉज आर फॉलोड बाय एवरी ऑब्जेक्ट विच इज सराउंडिंग, विच इज रिवॉल्विंग अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे मून जो है हमारे अर्थ का ऑर्बिट कर रहा है, दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड दैट इज कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अनदर ऑब्जेक्ट। राइट, तो वो जो है एक्चुअली में दीज फॉलोज दीज प्लैनेटरी मोशन रूल्स। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बेसिकली हमें ये बात पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 10 दिया हुआ है, यूज दैट 10।
अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ही आप 9.8 को यूज़ करें, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। इफ़ यू हैव टू टेक g इक्वल्स टू 10 दैन इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है, इट शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि भाई g को तुम्हें 10 लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है यूज़ 9.8 ओनली, ठीक है, दैट शुड बी डन, ठीक है। जब कभी भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी कर रहे होगे तब आप ये बात नोट में रखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लेट्स से वी हैव थ्रोन अ बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हमने उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रही है दैट मीन्स इट इज अपोजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो तो इसे नीचे खींच रहा है ना, और बॉडी ऊपर जा रही है दैट मीन्स इट इज अपोजिंग, राइट। एट दैट सिचुएशन g का वैल्यू इज टेकन एज द नेगेटिव ऑफ 9.8, ऑलराइट, क्योंकि हम उसको नेगेटिव लेने वाले हैं बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए, दैट्स वाई हम नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे g को। सो द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन विल बिकम, यहाँ पर at होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस at, वहाँ पर हमने माइनस जी रख दिया, मतलब वी हैव रिप्लेस a इक्वल्स टू माइनस जी, ये हमने रिप्लेस कर दिया है, और हमने s को h से रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, उसको हाइट से रिप्लेस कर दिया, बस, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो यू कैन सी हियर s की जगह h, g की जगह a की जगह माइनस का g, a की जगह माइनस का g एंड s की जगह h, ठीक है। बस यही काम करना है। कब कब आपको ये काम करना है, जब जब कोई भी बॉडी को ऊपर फेंका जाए एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ऑलराइट, तब अब देखो, अब अगर आपको बॉडी को नीचे फेंकने के लिए बोला जाए, लेट्स से अ बॉडी इज ड्रॉपिंग एंड अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो आप वहाँ पे g को लेने वाले हैं पॉजिटिव, s को लेने वाले हैं h, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू g लेंगे और s इज इक्वल्स टू h लेंगे, ऑलराइट। सो यू आर गोइंग टू डू दैट, तब हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी v प्लस जी टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरीके के हमारे तीनों इक्वेशंस बन जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा 2 फैक्ट्स और हैं, और वो फैक्ट क्या है, वो है ये कि अगर आपने किसी बॉडी को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ठीक है, और वो जहाँ से वो ऊपर गई अब वो रिटर्न होके वापस आ रही है, तो एट दैट पॉइंट जब वो आपके हाथ में होगी, एट दैट पॉइंट या फिर जब आपके हाथ में बिल्कुल टच करने ही वाली होगी, तब भी उसका सेम वेलोसिटी रहने वाला है, वेलोसिटी विल नॉट चेंज, ऑलराइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अनदर थिंग, जितना टाइम बॉडी को आपके हाथ से ऊपर उसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा, उतना ही टाइम उस हाईएस्ट पॉइंट से आपके हाथ तक आने में लगेगा। भले ही एक्सेलरेशन एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव हो, बट फिर भी ऐसा ही होगा। दैट दीज आर द मेन थिंग्स यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको मेन चीज ध्यान में रखनी है, ऑलराइट, नोट दिस डाउन। ऑलराइट, अब हम फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या पूछा। द डिस्टेंसेज ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम सन आर नियरली 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, assuming that they move in circular orbits, then find the ratio of their time periods। देखो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का रेशियो पता करने पूछा है, लेकिन बात हमें पता है कि भाई हम कैपलर का कौन सा रूल यूज करने वाला है, थर्ड रूल, ठीक है। तो देखो हमें ये बात पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो यहाँ से मैं ये बात पता कर सकती हूँ दैट टी कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3/2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R3/2। 3/2 क्यों, क्योंकि देखो मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, अंडर रूट कर दूंगी, राइट। अंडर रूट करते ही r की पावर वुड बी 3/2 एंड t वुड बी सिंगल, राइट। अब ये जो टाइम पीरियड है आई कैन राइट दैट फॉर प्लैनेट 1 एंड द प्लैनेट 2। तो देखो मैं अगर नेपच्यून के लिए लिखना चाहती हूँ, ठीक है, नेपच्यून के लिए लिखना चाहती हूँ एंड आई कैन राइट TS फॉर दी सैटर्न, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ R ऑफ नेपच्यून की पावर 3/2 एंड R ऑफ सैटर्न की पावर 3/2, ठीक है। लिख सकते हैं अपन ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर रेडियस ऑफ नेपच्यून कितना दिया हुआ है, रेडियस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, द एवरेज वन, ऑलराइट, दैट इज द थिंग वी हैव गिवन हियर। सर्कुलर ऑर्बिट से मूव करे ऐसा हमको पहले से गिवन किया हुआ है।
अब आप देखो 10 की पावर 13 सॉरी 10 की पावर 13 और इसकी पावर 3/2। नीचे आप देख सकते हैं 10 की पावर 12 और इसकी पावर 3/2। तो आई कैन राइट समथिंग हियर 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 और इसका होल 3/2। आई कैन राइट दैट, राइट। हम दोनों का पावर बाहर लेकर आ सकते हैं, राइट। अब देखो 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10, सिर्फ 10 बचेगा क्योंकि 13 माइनस 12 हो जाएगा, राइट। अब बचा है 3/2। तो मतलब पहले तो क्यूब करेंगे फिर अंडर रूट करेंगे, राइट। तो इसका मतलब हम पहले क्यूब कर देते हैं तो इट वुड बी 1000 की पावर 1/2। बट हमें तो ये पता है कि 100 का स्क्वायर रूट इज 10, राइट। तो हमें ये बात पता चल गई कि एक 10 बचेगा और एक अंडर रूट 10 बचेगा। सो दिस इज द रेशियो, right? This is the ratio of these time periods between the time period of Neptune and the time period of Saturn. All right, that's how we can solve these type of question. This is this one. ठीक है, ये तो पहला ही क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास करेंगे और उस रिवीजन क्लास के बाद जब हम क्वेश्चंस वाली क्लास करेंगे देन आई विल बी टेकिंग यू विद द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सो दैट आप सभी क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओगे। ऑलराइट, सो नोट दिस डाउन एंड देन वी विल बी साइनिंग ऑफ। Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also remember to do the homework and that's it. Thank you so much.